but at least there should be one. Okay. So I hope you have opened the Jupyter notebook. The part of today's lecture will be basically NumPy, Pandas, and Matplotlib, and we will be doing that in detail for physics research part. So I'll just create a new folder as day 4. Okay, and I'll create a new notebook named as Python Basic Libraries. Discovering NumPy plus Pandas plus Matplotlib. This lecture might get a bit longer than usual because ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ cover करने हैं. But if ਇਹ lecture अपना 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, we will stop at some point. ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦੋ cover ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ will manage ਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ workload ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ, but we'll do all this stuff. So today we are not just going to write directly the code. हम इसमें पहले जाएंगे यहाँ पे न्यू पे जाके टर्मिनल पे जाएंगे. ओके, सो इन टर्मिनल यू हैव टू राइट pip install numpy and press enter. So actually it's already installed in my computer, so I hope there will be some loading in your PC and it will get installed. What is the actually what is the background behind this command? You have to go to pypi.org to understand this. I'll just log in my profile and I'll show you some stuff, and then you will get some better understanding. So basically if I just search numpy here, so you see there are several like accelerated numpy, but the original one is this only, the numpy package. The current version is 2.3.2. So you can download the whole NumPy library from here actually. So these are funded by NumFocus. The PYP डाउनलोड कितने होते हैं इसमें, एनकोंडा डाउनलोड सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका पब्लिकेशन लिखी हुई है कि ये कहाँ पे पब्लिश है इसका पेपर. सो इट्स एक्चुअली पब्लिश इन नेचर. So it's quite advanced library. Oh, sorry. So array programming with NumPy. Okay. So these are all the things. This is for the people who are into core programming of Python and Python libraries. यहाँ पे आपको सारे जितने पाइथन लाइब्रेरियंस हैं सबके पैकेजेस मिल जाएंगे, उनका पूरा कोड. वो कैसे, अगर मैं इस फाइल को डाउनलोड करता हूँ तो सब कुछ मिल जाएगा, और उनके मेंटेनर कौन है सारा कुछ वहाँ पे दिख जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आई गो फॉर पांडास. Okay, so there is first thing pandas, and they also have this paper published. These are all the maintainers. कईयों के मतलब faces नहीं है, so they are just like this. So these all are the things how Python work, how to pandas work, how to download and how to contribute and all that. ठीक है. Similar with अपना Matplotlib. Matplot. Okay. मैटप्लॉटलिब. यहाँ से हम अब पता कर सकते हैं कि कैसे हमने डाउनलोड करना है फॉर टर्मिनल, फ्रॉम टर्मिनल. ठीक है. अब इसके कुछ मैटप्लॉट के टेस्ट फेल हो रहे हैं, मे बी ये हो जाएगा सही. देयर आर मेनी पीपल कंट्रीब्यूटिंग. मैटप्लॉटलिब इज जस्ट फॉर प्लॉटिंग थिंग्स, प्लॉटिंग योर डेटा. Okay, so these are the maintainer you see. So these are the stars. How many? There are 21,000 stars in the repo and around 8,000 forks. So it's quite big thing for them, for everyone viewing this actually. So similarly if I go for my Python package Glamo, so you will see here, so it is maintained by me. To download pip install Glamo. So it's not published yet, it's under publication, so hopefully by the end of this year it will be published. So here is the source code, documentation and all the websites वगैरह वगैरह यहाँ पे डाउनलोड फाइल कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो. Okay, so to download matplotlib etc,
ज्यादातर क्या होता है, वी जस्ट हैव टू राइट पिप इंस्टॉल द नेम ऑफ द पाइथन पैकेज, बट समटाइम द पाइथन पैकेज नेम इज ऑलरेडी टेकन बाय सम पायरेटेड स्टफ और अदर पर्सन, तो वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। दैट वी विल लर्न इन फ्यूचर कि कौन कौन सी ऐसी हैं, जैसे सीवी है हमारे पास एक, CV2 ओपन सीवी स्लैश पाइथन ऐसा डाउनलोड करना पड़ता है उसे, तो वो थोड़ा सा अलग है। पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, तो आप क्या करोगे, rather going from one by one like pip install numpy matplotlib pip install pandas, आप क्या कर सकते हो, सीधा लिख सकते हो pip install pandas matplotlib, और जितने भी आपने अलग अलग करने हैं सब सारे एक लाइन में लिख दो और एंटर मारो, वो एक एक करके लिखेगा। पहले जाएगा पांडास में ऑलरेडी इंस्टॉल है, फिर जाएगा मैटप्लोट्लिब पे ऑलरेडी इंस्टॉल। सो दिस इज हाउ यू कैन गो। आई होप यू हैव ऑलरेडी डाउनलोड दिस नाउ टिल नाउ, क्योंकि ये ज्यादा बड़े पाइथन पैकेजेस नहीं है, दे आर हार्डली लाइक oh wait, they're hardly like 10 MBs max, maybe, एक बार देख लेना, ठीक है। So please give me a thumbs up if you have downloaded this. After that we will be moving forward with NumPy first and how to use them. So basically these Python packages are the package or which have all things collective in one place. Like there are bunch of big codes behind them जो एक बंदे को लिखने पड़ते बिफोर डूइंग सम कोडिंग, बिफोर डूइंग सम कैलकुलेशन और स्टफ या कुछ प्लॉटिंग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे कोड को मर्ज करके एक सिंपल लैंग्वेज का कोड बना दिया पाइथन के अंदर, सिंपल लाइन बना दी जिसके जिसको क्या करोगे आप, पहले पाइथन को कॉल करोगे, पाइथन पैकेज को कॉल करोगे और उसके साथ वो एक एक छोटे छोटे कीवर्ड्स लिख के उसको रन कर दोगे पूरे के पूरे कोड को जो बड़े वाला था। बेसिकली इट इज अ compression of big codes you can say, ठीक है। So that's it. For those who just joined, I just want to tell you, I have just told how to download NumPy, Python, NumPy, Pandas, and Matplotlib. So basically, you have to go to pip install Pandas, NumPy, and Matplotlib. So when Matplotlib. So once you click on this, it will get installed. Okay. So it's already installed in my thing. So you can go for it. Hopefully, everyone has done that. So first of all, we will be learning about NumPy. NumPy. I'll just create this as a mark now. So number one is NumPy. So NumPy is basically numerical Python. The short form is actually NumPy. It's actually num with capital P. Okay, just to make specific, it's NumPy, numerical Python stuff. Okay, where we deal with arrays, numbers, and a bunch of data stored in some numbers data. So to start with this, if you will go, oh, okay, you have to import any package with import numpy package name as np. Why np? To make it short. लाइक अगर हम कोई ऐसी सिर्फ इसको इंपोर्ट नंपाई कर देंगे ना, तो जब भी हम कोई कमांड यूज करेंगे ना इसकी नंपाई की, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा नंपाई डॉट अलग जो एक्सेट्रा कमांड होगी। अब हमें अगर हम इसे नंपाई एज एनपी कर देते हैं तो ये क्या कहेंगे, एनपी डॉट कमांड, ये थोड़ा सा छोटा कर देता है कोड को। अगर आपने एनपी नहीं लिखना, यू कैन गो विद एन ऑल्सो, बट कन्वेंशन क्या रहती है, ज्यादातर जो बिगर कोड्स में यूज होते हैं तो वो एनपी ही यूज करते हैं। सो इट्स रिकमेंडेड कि आप भी एमपी यूज करो, तो आप ज्यादा मतलब फ्लेक्स करने के लिए बड़ा एन या छोटा एन ना डालो, इट्स अपॉन यू, बट द स्टैंडर्डाइज कोड इन जनरल अदर पैकेजेस वगैरह जो भी आप कहीं पे चाहोगे तो ज्यादातर लोग एमपी यूज करेंगे। सो आई हैव ट्राइड टू यूज एन बट आई केम बैक टू एनपी, बिकॉज ज्यादातर कोड में फिर वो बाद में अगर आपको कॉपी करना होता है कहीं से कोड किसी का, या फिर उसको पाइपलाइन के अंदर यूज करना होता है वो थोड़ा सा पार्ट कोड का, तो फिर आपको फिर बार बार आपको एन एन पी से एन करना पड़ता है अपने कोड के लिए। सो रादर यूज द कन्वेंशन। सो वी विल बी डूइंग सम थिंग्स, ठीक है, तो हम ऐसे इसको इंपोर्ट कर लेंगे और ये हो जाएगा। अब देर इज समथिंग कॉल्ड पाइथन लिस्ट जो हमने पढ़ी हुई है, and second thing is numpy arrays. Both are similar, but there is some difference. Okay, so what I will do is, if it is possible,
So I'll just open my notes from here. I'll show you something कि उनमें basically क्या difference होता है, and then yeah. Oh. Wait a second. How can I do this? अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ, I'll just copy this here. So basically I'll just do one thing. यहाँ पे मैं इसको paste कर दूंगा. अरे यार, भाई, एक मिनट. Okay. So I will call this. Wait a second. I'll just write a code to show that image here. So I'll just close this out. इसका थोड़ा सा साइज सही करता हूँ. इसको फिर HTML में ही लिखते हैं, नहीं तो HTML में लिखूंगा. लास्ट ट्राई कर लेते हैं. HTML में लिख लेते हैं, बेटर रहेगा. So I'll just go with HTML. आपको मे बी ये शायद ना समझ आए थोड़ा सा, बट इफ अगर समझ आता है तो दैट्स वेल एंड गुड. बट अब पता नहीं ना ये इस कर देते हैं. Okay, so I'll just add one more thing. So this is a diagram showing array versus list. Okay, so list is something which is connected by some pipelines, where array is just a collection at one place. Okay, in detail I will explain it more. So basically क्या चक्कर है कि अभी मैं लिख के दिखाता हूँ. ठीक है, आई विल मेक अ लिस्ट फर्स्ट. इसमें मैं एक हेडिंग बनाता हूँ, पाइथन लिस्ट एंड पाइप numpy arrays, numpy numpy arrays. और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि we need to use always numpy arrays rather python list and how they are useful. So I'll create a list with L, and list को हम ऐसे लिस्ट डिफाइन कर देते हैं और उसकी रेंज डालते हैं 10. ये आपको पता है मैंने कैसे किया, ठीक है. और विल प्रिंट दैट 0 से लेके 9 तक वो प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, अब हम एक काम करते हैं. अब हम इसे एक चीज करते हैं. इस लिस्ट को हम एक लिस्ट 2 बनाते हैं. ठीक है, एक तो पहले मैं करता हूँ import array as ar. ठीक है, और L2 हम एक लिस्ट बनाते हैं जिसको लिस्ट करेंगे, जिसकी रेंज होगी हमारे पास क्रॉस 11. अब a इज इक्वल्स टू ar डॉट एरे एरे, और इसको हम करेंगे d. मैं बताऊंगा d क्यों लिखा है, और और a प्रिंट करेंगे.
अब एक चक्कर है, मैंने डी क्यों डाला? एक तो ये एरे प्रिंट हो गया आएगा, पहले इसने बिल्कुल ऐसे किया, और ये अब एरे प्रिंट हो गया है। और डी का मतलब ये है कि जो हमारे पास आउटपुट आएंगे आएगा लिस्ट के अंदर, जो एरे के अंदर आउटपुट आएगा वो सारे डेसिमल आएंगे। डी इज इक्वल्स टू डेसिमल आउटपुट। ठीक है, तो बेसिकली डी जो है डेसिमल आउटपुट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर और भी चीजें होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली जो पाइथन लिस्ट होती है ना, उसके अंदर मिक्स्ड टाइप होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास पाइथन लिस्ट होती है ना, इसके अंदर हम वो भी डाल सकते हैं, काइंड ऑफ अपना बूलियन, सारा कुछ डाल सकते हैं, स्ट्रिंग वगैरह। पर जो हमारे पास एरेज है ना, तो उसमें हम सिर्फ ऑल इंटीजर्स डालेंगे। ठीक है, ऑल सेम टाइम्स होंगी, एक एक तरह का ही होगा वो, मतलब लाइक एक अगर एक चीज आ रही है ना, तो एक चीज ही होगी। अगर मैं यहाँ पे आई ट्राई, अगर जैसे आई कर दिया तो वो इंटीजर वैल्यूज आएगा। ठीक है, तो ऐसा, अभी मैं डेसिमल कर देता हूँ। सो बेसिकली बेसिकली वो सारा एक ही टाइप का होगा। बट हमारे पास लिस्ट क्या होती है, आपको हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लिस्ट के अंदर हम कोई भी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, ए बी सी डी, कुछ भी, मतलब लाइक फ्लोट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट वो एरे एट पर्टिकुलर टाइम एक ही वैल्यू करता है। ठीक है, पर जब हमारे पास बड़ा डेटा होता है ना, तब मेन बात आती है स्पीड की, कि तेज कौन चलता है, एरे ज्यादा तेज चलती है या पाइथन लिस्ट ज्यादा तेज चलती है? ठीक है, द आंसर इज एरे ज्यादा तेज चलता है। अब हमारे पास अगर डेटा होगा जिसके अंदर 5-10 लाख वैल्यूज होंगी, नंबर्स होंगे, अब हमें तब उसकी जरूरत पड़ेगी ना, उस कमांड की जरूरत पड़ेगी ना, जो हमें उस वैल्यू को तेज रन कर सके। ठीक है, बेस तो इसलिए हम उस टाइम पे एरे यूज करते हैं। उस टाइम के लिए क्या, नॉर्मली भी हम एरे यूज करते हैं। ठीक है, ज्यादातर। और जब हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग, मैथ्स की बात आती है, मैट्रिक्स की बात आती है, तब भी हम एरे यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी हम चीज को ना एक एरे के अंदर डाल सकते हैं, किसी भी हम फोटो को एक एरे के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि numpy डॉट एरे, एक हम क्रिएट करते हैं एरे, ऐसे क्रिएट करते हैं numpy डॉट एरे। ठीक है, अब रेंज डालते हैं इसके अंदर एक, नहीं अभी रुक जाओ, पहले एक एरे क्रिएट करते हैं जिसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 फॉर एग्जाम्पल। एंड एक उसकी डी टाइप सेलेक्ट करते हैं, हम इसके अंदर डी टाइप इसको दे भी सकते हैं। ठीक है, कि ये एक फ्लोट होगा, फ्लोट का मतलब वो डेसिमल होगा और 32 बिट्स का होगा। अब ना इसका ये मत पूछना मेरे से कि ये 32 बिट्स क्यों है, क्योंकि इसके बाद फ्लोट 16 भी होता है। ठीक है, इसके इसके अंदर एक इंट 16 भी होता है, इंट 32 भी होता है। अब ये क्या होता है, इसके अंदर स्टोरेज वैल्यूज होती है। 32 बिट एक्चुअली ज्यादा स्टोरेज करेगा, 16 बिट थोड़ा सा कंप्रेस्ड होगा, ऐसा ऐसा कुछ होता है। वो एक्चुअली चली जाती है डिटेल स्टडी। ठीक है, तो अब देखो इसने क्या प्रिंट किया, 1.2.0, 4.0, 5.0। सो उसने वही प्रिंट किया और इसका ये प्रिंट किया। अगर मैं इसमें कर देता हूँ तो इसने ये प्रिंट किया, अगर इसमें 32 भी कर दूंगा तब भी यही प्रिंट आएगा। ऐसे हमें नहीं पता चलेगा, बट व्हेन वी आर डीलिंग विद समथिंग बिग तब हमें फर्क पता चलेगा डेटा का। ठीक है, तो बेसिकली 32 हैज मोर एफिशिएंसी बट इट्स स्लो, 16 इज मोर फास्ट बट लेस एफिशिएंट, ऐसा आप सोच सकते हो। ठीक है, बट हमें जब हमारे पास कम डेटा है तो हमें ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है एफिशिएंसी पे। ठीक है, क्योंकि हमारे को पता है क्या वैल्यूज आएंगी। अब हम चलो एक मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, सो वी विल बी क्रिएटिंग सम मैट्रिक्स, जो होगी 3x5 की मैट्रिक्स, और हम उसे एरे के फॉर्म में बनाते हैं। तो मैंने आपको पहले कहा था कि वी विल बी डीलिंग विद मैट्रिक्स एंड एरे। सो अब इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड लिखेंगे। याद है, रेंज एक क्रिएट करेंगे जिसको हम करेंगे आई से लेकर i+5 तक। ठीक है,
उसके बाद हम करेंगे फॉर आई इन 2 4 6। ठीक है, और अब इसके एक बार मैं रन करके दिखाता हूँ क्या होगा। 2 4 6 का मतलब क्या है, आई एक्सप्लेन कि मैं बताता हूँ। सो दिस विल प्रिंट अ मैट्रिक्स। अब उसने किया क्या कि फॉर आई इन 2 4 6 जो है, और रेंज आई से लेके आई+5 तक है, वो वैल्यू क्रिएट कर रहा है जो जाएगी आई से लेकर आई+5 एक्सक्लूडिंग आई+5। ये तो हो गया। सो फॉर आई इक्वल टू 2 4 6 इट विल क्रिएट, इट विल एक जनरेट कर देगा वैल्यूज जो जाएंगी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 2 3 4 5 6। बेसिकली बेसिकली ये होगी 2, फिर 2+5 क्या हो जाएगा हमारे पास 7। 7 को छोड़ के वो सारे प्रिंट कर देगी बेसिकली। फिर उसके बाद वो जाएगी 4। 4+5 क्या होता है हमारे पास 9। 9 को छोड़ के वो सारे प्रिंट कर देगी। फिर वो जाएगी 6। 6 को छोड़ के सॉरी 6+5 क्या होता है 11। 11 को छोड़ के सारे प्रिंट कर देगी। तो ये एक एरे बन गया। ठीक है, अगर मैं इसको 10 कर देता तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएगा। दैट्स इट। अब मैंने मिसिंग वैल्यू डाल दी, मतलब एरर करता है, मतलब वो डाला ना तो। ठीक है, तो ये होगा इससे। मैं इसमें लिख देता हूँ इट विल बी प्रिंटिंग, इट विल बी प्रिंटिंग every value in row from I to I+5 excluding I+5। ओके, तो ये ऐसा होगा। उसके बाद एक सबसे बढ़िया, सबसे परफेक्ट जो कमांड आती है ना, लिनस्पेस कहते हैं उसे, जो आप हर जगह हर वक्त यूज करने वाले हो। ठीक है, कोई आता आया ना, ओके, जो आप हर जगह यूज करने वाले हो, जिसको हम कहते हैं लिनस्पेस। लिनस्पेस, लिनस्पेस है समथिंग जो आपको जनरेट करके दे देगी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। ये सबसे बढ़िया चीज है एक्चुअली। इसमें क्या किया इसने, लिनस्पेस इज वेरी 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 क्रूशियल। अब इसमें क्या चीज है, मैं इसके जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, स्टार्ट, स्टार्ट, स्टॉप, नंबर ऑफ वैल्यूज। समझ आ गया होगा, इतनी कोई टफ बात नहीं है। वो क्या कर रहा है, एक से लेके स्टार्ट करेगा, 2 तक जाएगा और उसके अंदर 5 वैल्यूज जनरेट करेगा टोटल। 1, 1.25, 1.5। और ये हमेशा कुछ भी हो सकती है, मतलब कुछ भी रैंडम वैल्यूज कर सकते हैं। ठीक है, एरेज, मतलब कुछ भी कर सकता है। अब ऐसा कुछ नहीं है पर्टिकुलरली, मतलब ज्यादातर सेम ही करते हैं वैसे तो। अब ऐसा करूंगा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, मतलब उसको डिवाइड कर देगा बेसिकली 5 वैल्यूज में, उसको 6 वैल्यूज में डिवाइड कर देगा उस टाइप। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे 7 लेके जाता हूँ तो उसको 7 से उसको डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मतलब रैंडम वैल्यूज तो नहीं, अगर मैं देखूँ तो 1 के बाद 1.16 आना चाहिए, 1.13 आना चाहिए, 1.15 आना चाहिए, ऐसे अगर 7 वैल्यूज प्रिंट कर लिया तो टोटल वैसे जाएगा। हाँ, तो वैसा ही हो रहा है। तो बेसिकली वो डिवाइड कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर सीधा लिख ही देता हूँ, कुछ भी नहीं लिखता, इसने अपने से ही ले लिया, कितनी सारी वैल्यूज पुट कर दी, राइट। तो इसने मतलब अपने से कुछ भी ले लिया। तो आई कैन गो विद 100,000 वैल्यूज, सी, उसने डॉट डॉट डाल दी कि देख लो भाई, है बहुत सारी वैल्यूज। उसने उतनी नंबर ले ली, उतने हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसको वन कर देता हूँ, उसने करना ही एक ही वैल्यू प्रिंट करेगा, वो दो भी नहीं कर रहा। अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो फिर वो 2 वैल्यूज ही प्रिंट करेगा, उतने में ही डिवाइड करेगा। 8 कर देते तो 8 में करेगा। दैट्स इट। उसके बाद हमें हमारे पास समथिंग एक और चीज है जिसे हम ए रेंज कहते हैं, एरे रेंज। np डॉट ए रेंज, और 1 से लेके 20 तक, फॉर एग्जाम्पल 2 टू छोड़ के। अब इसमें क्या है, 1, बेसिकली यार यही वो चीज कर रहा है, इट्स प्रिंटिंग 1 to 20 सारे ओड नंबर्स, क्योंकि 2 मैंने इसलिए डाला कि 2 के अंदर जो 2 के टेबल में नहीं आते, बेसिकली ये सेकंड वैल्यू स्किप कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, स्टार्ट, स्टॉप,
यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू स्टॉप, इज नॉट इक्वल टू स्टॉप, इज, ओहो, वेट अ सेकंड गाइस, इज नॉट इक्वल टू स्टॉप, उसके बाद स्किप। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जैसे हम स्लाइसिंग करते थे वैसा वैसा समझ सकते हो, बट इट्स नॉट, क्योंकि उसमें हम कॉमा नहीं यूज करते थे स्लाइसिंग में। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, वो स्टार्ट कर रहा है 1 से, तो एंड करेगा 19 पे, क्योंकि 20 वाला नहीं कंसिडर करेगा, और स्किप करेगा सेकंड वैल्यू। बेसिकली अल्टीमेटली एक ये फंक्शन बन चुका है जो सारे और नंबर प्रिंट करता है। अब एक चीज होती है रैंडम। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक रैंडम नाम का वो होता है फंक्शन, रैंडम डॉट रैंडम, दो बार लिखेंगे। ठीक है, और एक मैट्रिक्स बनाते हैं 3 by 3 की। तो एक मैट्रिक्स आएगा जिसके अंदर हमेशा वो रैंडम करेगा जनरेट, आपकी वैल्यू डिफरेंट होगी, मेरी वैल्यू डिफरेंट होगी, इसमें रैंडम होता है। ये एक रैंडम पहले तो इसने इम्पोर्ट किया, फिर उसके अंदर एक और रैंडम के अंदर फंक्शन बनाया हुआ है उन्होंने, जिसके अंदर वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स जो ये है कर रहा है प्रिंट। अगर इसमें 1 कर देता हूँ तो ऐसा ही होगा, इसके अंदर एक बार मैं 1 करके दिखाता हूँ, तो वैसे ही प्रिंट होगी मैट्रिक्स। सो दिस इज काइंड ऑफ मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। और एक लकीली बात ये है कि द नोट्स आई एम from where I'm teaching you, even I have not did that in any of my previous lectures जो मैंने और बंदों को भी पढ़ाया है। तो इवेंचुअली क्या हुआ था, दिस बुक that I created for myself was lost when I lost the data of my previous window laptop। बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसकी हार्ड डिस्क तो खराब हुई थी, बट वो एक्सटर्नल ड्राइव में चल रही थी। सो अल्टीमेटली आई गॉट इट बैक, नहीं तो आज ये मेरे पास नहीं होती, आई विल बी टीचिंग फ्रॉम समवेयर एल्स। सो तभी वो बीच में थोड़ा सा अटक गया था काम, तो नहीं तो मैंने ऐसे तब का ये बना चुका था, पर उसके बाद मैंने छेड़ा ही नहीं वो काम। सो देर इज समथिंग मोर। ओके, सो देर इज वन मोर थिंग। सो ये रहने देते हैं, एक चीज दिखाता हूँ जो मैं कह रहा था। एक चीज दिखाता हूँ, ये जो मैं कह रहा था ना, इंट 8 भी होता है, 8 बिट इंटीजर, फॉर एग्जाम्पल 127, 16 बिट, ऐसी वैल्यूज, 32 बिट ज़्यादा डेटा स्टोर हो रहा है बेसिकली, समझ रहे हो। 64 बिट और ज़्यादा डेटा स्टोर हो रहा है, 8 बिट कम डेटा स्टोर हो रहा है। यू अनसाइंड बिट जैसे होगी तो वैसे। सिमिलरली 32 बिट में थोड़ा सा और ज़्यादा डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर 62 बिट में और ज़्यादा, फ्लोट के अंदर वैसी वैसी वैसी, और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, वो हम डील नहीं कर रहे। ठीक है, सो दैट्स इट। सो वो आपको मैंने जस्ट रफ आइडिया दे दिया क्या क्या होता है। सो देर इज समथिंग कॉल्ड इंडेक्सिंग नाउ। ठीक है, सो क्रिएट indexing an array। इंडेक्सिंग एन array, ठीक है, एक बार मुझे ना देखने दो, मुझे लगता है कि ज़्यादा अगर हमने किया तो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वी आर ऑन द करेक्ट पेस। अभी पढ़ा है हमारे पास काफ़ी टाइम। सो क्योंकि मैं ये देख रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन दी जाए, फालतू का ना किया जाए। सो आई क्रिएट अ लिस्ट जिसे हम L3 के देते हैं, और इसको लिस्ट डिफाइन करता हूँ फटाफट, और इसके अंदर रेंज डालता हूँ एक रैंडम सी, 10 से लेके 15 तक। तो बेसिकली ये 10 प्रिंट करेगा, 11 प्रिंट करेगा, 12 प्रिंट करेगा, 13 प्रिंट करेगा, 14 प्रिंट करेगा, और इसके अंदर इसको एक लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, बेसिकली आप देख सकते हो कि आप कोई भी लिस्ट को एरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मली, ये लिख के, ये लिख के या फिर ये लिख के।
np डॉट एरे, और इसको क्या लिखोगे, मैं जो इसकी सारी वैल्यूज होती है मैं उसको इंटीजर डिफाइन करके इसके अंदर L3 की वैल्यू डाल देता हूँ, फिर A1 प्रिंट कर देता हूँ। सो हाँ, ये चीज जो है ना, कल्ला A1 प्रिंट करना, ये उस पर नहीं चलेगा VS कोड पे, सो ये इसी पे चलेगा। तो आपको VS कोड में मैंने आपको पहले बताया था, VS कोड पे तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत आई है। टप्पल, मुझे लगता है यहाँ पे A8 लिखना था मुझे, एरे में से जाएगा ना। हाँ, तो बेसिकली ये हमने क्या, ये कहाँ से किया है, हमने यहाँ से लिया है, import arrays as AR। ठीक है, arrays अनदर, अगर हम देखें यहाँ पे, तो हम एक एरे को यूज कर रहे हैं डायरेक्टली मे बी, पर लंबाई का होता नहीं है। एरेज आएगा इनबिल्ट। So yeah, it's a module in Python, so it's already there. We don't need to install. So array से हम convert कर लेंगे इसे ऐसे। तो हमने कर लिया import, import arrays, ये देख लेना एक बार। ठीक है, हमने ऐसे किया एंड ये हमारा हो गया। उसके बाद अगर हम A1 की जीरो वैल्यू पुट करेंगे, सो एनी गेसेस क्या प्रिंट होगा, इट्स वेरी सिंपल नाउ। अगर हम जीरो इंडेक्स पे प्रिंट करेंगे तो 10 प्रिंट होगा। ओके, सिमिलर इंडेक्सिंग होनी है जैसे लिस्ट की होती है, सो आई वॉन्ट बी एक्सप्लेनिंग इट मच। अगर हम जीरो से लेके सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे तो सारा कुछ आ जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे 2 तक करेंगे तो 2 तक प्रिंट हो जाएगा। 0 1 2 वाला ऑब्वियसली लास्ट वाली वैल्यू नहीं प्रिंट होती। इसको अगर हम ऐसे कर देते हैं, वंस कितना ही होगा, 10 प्रिंट होएगा अकेला। ठीक है, ये सारा मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, सो आई वॉन्ट बी गोइंग इट इन डीपर। वैसे ही अगर हम नेगेटिव यूज करेंगे तो वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। तो ऐसी इंडेक्सिंग होती है जैसे नॉर्मली हमारी लिस्ट वगैरह की या किसी भी चीज़ की इंडेक्सिंग हम करते हैं। ओके, तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि हम अम, अम, अगर मैट्रिक्स की इंडेक्सिंग करनी हो हमें, हम एक एरे 2 बनाते हैं जिसको हम लिखते हैं np डॉट, जो np की सारी वो लिस्ट वगैरह होती है ना उसको हम एरे ही कहते हैं। एक रैंडम हम वो करते हैं, रैंडम डॉट रैंडम 3 क्रॉस 3, एक ब्रैकेट और डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, A2 के अंदर अब इंडेक्सिंग करनी है। अब अगर हम जीरो पुट करेंगे तो वो पूरी की पूरी जीरो रो प्रिंट कर देगा। प्रिंट प्रिंट जीरोथ रो। ठीक है, अगर हम इसके अंदर ऐसे करेंगे 0 0, तो ये ए आई जे समझ रहा है, विच इज इक्वल्स टू A11, जो हमारे पास 11, और A00 इन पाइथन। ठीक है, मैथ्स में तो हम उसे 11 कहेंगे ना, तो वो प्रिंट करेगा। और वो ये भी बता रहा है कि वो फ्लोट है पहली वैल्यू, पर इसको मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ। ठीक है, पहले नॉर्मली हम इसको प्रिंट करेंगे, आगे आपको पता चल जाए। तो अब इसे हम प्रिंट करेंगे, तो ये वो फर्स्ट वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ठीक है, सो ये चीज़ें होंगी, ऐसा आप देख सकते हो। तो यार मेरा ना बहुत दिल है आपको वो वाली बुक प्रोवाइड करने के लिए, बट उसमें एक्चुअली बहुत कुछ लिखा है मैंने, मतलब पूरा जो मैंने सीखा है ना, एक एक एरर भी देखे, एरर भी डाले हुए हैं उसके अंदर कि एरर कौन कौन से आएंगे अगर आप ये पंगे लेते हो वो पंगे लेते हो। जैसे ये मैंने एरर अपना खुद वो करके दिया हुआ है। अब पंगा ये है कि ये अभी बुक कंप्लीट नहीं हुई तो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो अगर एक बार बुक कंप्लीट हो जाए मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा ऐसी, मतलब एनी वन कैन रेफर। ठीक है, आगे किसी को पढ़ाना है इस बुक से यू कैन, क्योंकि इसमें हर चीज एट द बेस्ट थिंग, मतलब जो हो सकती है, जो मिनिमम बेयर चाहिए वो सारा कुछ है। उसके बाद आ जाता है मल्टी डिमेंशनल सब एरेज। ठीक है, इसकी ज़्यादा वैसे जरूरत पड़ती नहीं।
मैंने मतलब कभी ज़्यादा इतना यूज़ नहीं किया बट ठीक है। इसमें क्या है, हमें कोई भी मल्टी डिमेंशनल एरेज बना लेते हैं। एक मैट्रिक्स है, उसमें से एक छोटी मैट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, उसको रिवर्स कैसे करना है मैट्रिक्स को, जैसे हम वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं, वो कैसे करना है। एक्चुअली मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी डेटा स्ट्रक्चर्स। जब भी हम डेटा को हैंडल करते हैं, वहाँ पे मैट्रिक्स होगी, और मैट्रिक्स को डील करना हमें आना चाहिए। इवन व्हेन यू आर मोस्टली इन क्वांटम वगैरह हो गया ना, क्वांटम में हमारे पास बहुत मैट्रिक्स होती है, राइट। अगर हमारे पास एस्ट्रोनॉमी वाला केस है, एस्ट्रोनॉमी का डेटा बहुत मैट्रिक्स से भरा होता है। तो यू नीड टू नो दिस। तो हम एक एरे 4 जनरेट करेंगे, जिससे हम कर देते हैं numpy random, जिसे हम 4 by 4 डिफाइन करते हैं। अब एक ना एक और चीज है, मैं आपको बताता हूँ। सो देयर इज समथिंग वी कैन डू, कि अगर तुमने, हाँ, तो हम एक ऐसे ऐसी चीज डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर इसके अंदर हम रैंडम की जगह रैंड इंट डाल देना, तो हम इसके अंदर एक चीज कर सकते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी, मैट्रिक्स मैट्रिक्स वैल्यू चाहे तो रैंडम जनरेट कर, मस्ट लाई इन 5 to 10। एक वो डिफाइन कर दिया। अब मैं इसको करूंगा ना A4 प्रिंट। ओहो, A4 प्रिंट। तो वो 6 9, ये सारा जितनी भी रैंडम इसने जनरेट किया ना, वो 5 और 10 के बीच बीच में ही रहेगी। अगर मैं इसको 5 ही कर देता हूँ, 5 to 5, एरर देगा। इसने क्या एरर दिया कि लो टू हाई होना चाहिए, लो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू हाई। ठीक है, तो मतलब ये अलग वैल्यूज होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे भी कर दूंगा, ये नहीं वर्क करेगा। ठीक है, तो बड़ा ही होना चाहिए कुछ, मतलब लो टू हाई जाना चाहिए, स्मॉल। तो ऐसा रहेगा। ठीक है, अगर देख रहे हो, वो सिर्फ 5 5 के पुट कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा वेरिएशन ले लेता हूँ 10 का। अब इसको अब एरे करना हो, इसको इसको वो करना होगा, स्लाइसिंग करनी हो बेसिकली। अब इसमें स्लाइसिंग करेंगे, ना कि इंडेक्सिंग। तो कैसे करेंगे कि तू क्या कर, थर्ड रो ले और एक्सक्यूज साथ मी, में, हाँ जी हाँ जी, स्क्रीन नहीं अभी शेयर हो रही शायद। स्क्रीन विजिबल नहीं है, आई गेस हाँ इट्स, जी, हाँ जी, हाँ जी। एक बारी दूसरे सारे वेरीफाई कर दो अगर स्क्रीन नहीं विजिबल, क्योंकि मैं फिर घंटे से मतलब काम गड़बड़ हो रही है। एनीवन एल्स प्लीज एक बारी बता दो कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं। यस, 1 minute अगो एरर अकर्ड। मतलब काफी देर के लिए स्क्रीन विजिबल नहीं थी या कैसे, ये कोई ग्लिच बस था थोड़ी देर के लिए। मतलब कितना सामान मतलब गायब हो गया था। ये दिख गया ना, मल्टी डिमेंशनल एरे, सब एरेज, इंडेक्सिंग एन एरे, ये सारा हो गया या ये नहीं हुआ। ये सारा हो गया, राइट। यार बता दो। हाँ ना, तो बोल दो कि अगर ये हो गया तो भी ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ एक बारी फिर से। ये सारा मल्टी डिमेंशनल एरेज वगैरह ये हुआ या नहीं। हो गया, ये तो हो गया था। ओहो, मेरा नेट स्लो हो गया ब्रो। हॉटस्पॉट है, करियो यार फटाफट। मेरा यार नेट थोड़ा पंगा पै गया। केड़ा है पासवर्ड है क्यू
डिस्कनेक्ट होगी यार आज क्लास। सॉरी गाइस, नेटवर्क इशू आ गया ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ वॉइस वगैरह सारा कुछ क्लियर है? इज इट क्लियर प्रॉपरली? स्क्रीन विजिबल है? yes, okay. Yes. So I'll just go through again. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਆਫ ਐਰਰ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੰਪਾਈ ਦੀ ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਓਕੇ, ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਇਨ ਹਿੰਦੀ ਬਿਕॉज यूट्यूब ਤੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਹੋਣੀ ਹੈ हिंदी और इंग्लिश। सो बेसिकली लाइक वी डू इंडेक्सिंग स्टार्ट स्टॉप स्किप, कि जीरो से स्टार्ट होगा, 4 नंबर अगले प्रिंट करेगा और दो दो स्किप करेगा उसमें से। ठीक है, तो बेसिकली ये पहले हमने एक एरे क्रिएट किया जो हमारे पास 10 से लेके 15 तक था। बेसिकली 15 नहीं प्रिंट होगा, और उसके इंटीजर एरे रखा जिसके अंदर सारी इंटीजर वैल्यूज होंगी। वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा 10 से, फिर 1 2 3 4 तक जाएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स 4 को नहीं प्रिंट करेगा, और उसके अंदर टू सेकंड वैल्यू को स्किप कर देगा, मतलब जो 1 2 इसको स्किप करके वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद हमने एक मैट्रिक्स डिफाइन की जिसको हमने एरे की तरह डिफाइन किया, 3 क्रॉस 3 की रैंडम जनरेट की। उसके बाद हमने उसकी भी इंडेक्सिंग की कि जीरो जीरो अगर हम अकेला प्रिंट करेंगे तो जीरो वाली रो सारी की सारी प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, अलग अलग लिखता हूँ, इसको करता हूँ, और वो इसके अबव एक, ये देखो, ये जब किया तो जीरो वाली रो प्रिंट होगी। जब मैंने दूसरा किया तो वो सिर्फ ए आई जे प्रिंट हुआ। ए आई जे इज A11 जीरो जीरो वाला। जीरो जीरो हम पाइथन में कहते हैं क्योंकि जीरो जीरो पे है। जीरो वन क्या होगा, जीरो वन ये होगा, अगर हम करके देखें ना वो वाला प्रिंट होगा। तो यू कैन प्ले विद दिस। उसके बाद आते हैं सब डिमेंशनल एरेज। सब डिमेंशनल एरेज क्या होते हैं कि एक और चीज हमने सीखी, हमने एक मैट्रिक्स ही क्रिएट की। तो उसके अंदर हमने क्या किया, एक फंक्शन डाला रेंडेंट। रेंडेंट क्या करेगा कि हमें कोई भी दो हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स है इससे लेके इस तक की वैल्यूज होंगी उसके अंदर, चाहे रैंडम तुम करो बट इसके अंदर वैल्यूज होंगी। तो बेसिकली अगर हम ऐसे कर देता हूँ तो वो होगा, अगर इसको कम वैल्यू कर दे तो ये एरर दे देगा कि लो से हाई वैल्यू जाएगी, लो से हाई से लो नहीं जाएगी वैल्यू। तो इसलिए मैंने एक सफिशियंट वो डाल दी। उसके बाद अगर मैं ऐसा कुछ प्रिंट करूंगा तो ये जीरो से लेके थर्ड रो तक सारा प्रिंट कर देगी। ठीक है, वो आपको पता है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज करता हूँ, कॉमा डालता हूँ। थर्ड रो तक तो तू प्रिंट कर, तो साथ में कॉमा कॉलम भी रिस्ट्रिक्ट कर दिए। कॉलम भी तूने दो प्रिंट करने पहले, तो जीरो वन। ठीक है, टू सेकंड वाला नहीं करना, सेकंड इंडेक्स वाला। तो ये आप ऐसे स्लाइसिंग कर सकते हो। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट 3 रो ऑल्सो फर्स्ट 2 कॉलम्स। ठीक है, तो ऐसा हो गया। उसके बाद आती है ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली रिवर्सिंग मल्टी डायमेंशनल सब एरे। अच्छा, तो अब क्या होगा यार, एक मिनट, समवन इज कॉलिंग। अच्छा, तो अब क्या होगा कि हम एक एरे एरे का जो हमने क्रिएट किया, चलो उसी को इंडेक्स करते हैं, इसको ही हम रिवर्स करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -1 कोमा 0 0 -1, एज सिंपल एज दैट। क्या किया हमने, उसको कहा कि तू -1 तक पहले सारे प्रिंट कर, उसके बाद जो कॉलम आएंगे वो भी उल्टे प्रिंट करने हैं -1 तक। -1 इज बेसिकली वो उसको लास्ट वैल्यू कह रहा है, पहले लास्ट वैल्यू से प्रिंट कर। मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ क्या रहेगा। वो क्या कर रहा है, बेसिकली लास्ट वैल्यू से लेके फर्स्ट वैल्यू तक प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, कॉलम में भी क्या कर रहा है, कॉलम में भी जो लास्ट वैल्यू है उसको पहले प्रिंट कर रहा है। बेसिकली फ्लिप कर दिया उसने, ट्रांसफॉर्म कर दिया। जब हमने माइनस ले लिया ना, तो हमने क्या पढ़ा था लिस्ट में कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी माइनस की वैल्यू होगी।
और जो लास्ट वैल्यू होगी वो सबसे छोटी माइनस की वैल्यू होगी, बेसिकली -1। तो ऐसे उसने पूरा फ्लिप कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसा। इसी के साथ हमारा खत्म होता है numpy। क्या तो क्या है सिंपली लाइक दिस। ठीक है, कोड बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं पांडास। ठीक है, थोड़ा सा फैंसी बना रहा हूँ ताकि अच्छा। ठीक है, सो पांडास बेसिकली क्या है? पांडा वर्क्स विद डेटा फ्रेम्स। पांडा लाइब्रेरी जो है डेटा फ्रेम्स के साथ काम करती है। ठीक है, और जैसे हमारे पास CSV फाइल्स होती हैं, उसको कैसे हैंडल करते हैं, उसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, अगर कोई खाली वैल्यू है उसको कैसे हटाना है, उसको कैसे फिलअप करना है। ठीक है, वो सारा काम हमारा पांडा से होता है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर जो फिट्स फाइल होती हैं उसका जो डेटा होता है ज्यादातर हमारे पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में भी होता है, हालांकि उसको हम टेबल डिफाइन करते हैं, बट दे आर काइंड ऑफ दैट स्टफ आल्सो। बस एक सेकंड, गाइस एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो बेसिकली फाइनल डील विद द CSV फाइल। तो अब मैं क्या करूंगा, हम एक ना छोटी सी CSV फाइल बनाते हैं पहले। ठीक है, नॉट फ्रॉम एक्सेल। सो बेसिकली क्या होता है ना, पांडास हमारे को एक्सेल यूज करने से रोकता है। वो कहता है कि अगर पांडास है तो यू कैन डायरेक्टली यूज पाइथन एंड वर्क विद इट टू हैंडल योर CSV फाइल्स। ठीक है, अब हम एक CSV फाइल बनाते हैं जिसको हम लिखते हैं import CSV। पहले एक ये CSV ऑलरेडी इंस्टॉल होती है पाइथन के अंदर टू क्रिएट CSV फाइल्स। सो हम एक इसको इंपोर्ट करेंगे, तो डेटा क्रिएट करेंगे, डेटा के अंदर हम एक ऐसे एक डिक्शनरी जैसा डेटा क्रिएट करेंगे, बट नॉट ऑल टाइप ऑफ डिक्शनरी, एक तरह वो लिस्ट ही होगी जिसको हम ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम डाल देते हैं गैलेक्सी, कुछ कुछ डेटा डाल देते हैं गैलेक्सी, और साथ में उनकी रेड शिफ्ट, या फिर इसको छोड़ो, एज। काफी सिंपल सा बनाते हैं, और इसे एक कोमा कोमा से कर देते हैं, कोमा करके अब इसके अंदर सारी वैल्यूज डाल देंगे। सो बेसिकली ये जो होगी हमारे पास फर्स्ट रो है जिसके अंदर हमने नाम डाल दिया, फिर उसकी वैल्यूज होंगी। तो हम पहला नाम दे देते हैं जैसे जशन। ठीक है, जशन थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, जशन, और साथ में हम एज लिख देंगे इसकी 18, 19 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम एक और लिख देते हैं, कोई फॉर एग्जांपल हर्लीज, ये सिस्टर का नाम है, शी इज 10। देन कोई और XYZ एलन, तो ये है अराउंड 1 ईयर ओल्ड। नहीं, इसकी हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हम ब्लैंक छोड़ देते हैं।
उसके बाद एक वैल्यू हम और डाल देते हैं, जिसे हम नरेश लिख देते हैं, एंड इसे हम लिख देते हैं 100। ठीक है, उसके बाद हम लिख देते हैं युवराज, और guys I'm not targeting my seniors, just I love my these names 200। ठीक है, these are the ages। एंड अब क्या चक्कर है, लिस्ट इंडेक्सेस मस्ट कॉमा नहीं डालना यार, अब होगा ना। ठीक है, हमने ये डेटा क्रिएट कर लिया। अब एक और एंट्री डालते हैं विद कॉमा, कॉमा याद रखना, इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक, ऐसे खाली सी है। अब हम क्या करेंगे, हमने जैसे ये डेटा क्रिएट कर लिया, तो हम इसको सेव करेंगे विद, एक कमांड है विद ओपन, और इसका नाम डाल देते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा डॉट सी एस वी। मोड क्या रहेगा हमारे पास, वी, मोड इज टू वी, डब्ल्यू सॉरी, और न्यू लाइन इज इक्वल्स टू दिस, उसके बाद एज फाइल, ये कमांड होती है टू सेव द फाइल, और राइटर इज इक्वल्स टू सी एस वी डॉट राइटर फाइल। ठीक है, और राइटर डॉट राइट रोज डेटा। सो बेसिकली वो सारा कुछ राइट कर देगा और सेव कर देगा। ठीक है, सो बेसिकली उसने सेव कर दिया। इफ आई विल गो इन दिस फोल्डर, तो आप देखोगे इसके अंदर एक डेटा डॉट सी एस पी फाइल आ चुकी है, जो ये है। अब उसने क्या किया, ब्लैंक वाली भी प्रिंट की है। ठीक है, न्यू लाइन वगैरह सारा कुछ डाला हुआ है, डब्ल्यू मोड रखा हुआ है। सो बेसिकली ये राइट कर देगा डेटा इनटू अ सी एस पी फाइल। सो ये आप देख लेना थोड़ा सा, ये मेथड होता है इसका। अब ये बस मैंने क्रिएट करने के लिए किया, हम नॉर्मली डेटा नहीं क्रिएट करते हैं ऐसे, बट कई बार जरूरत पड़ जाती है, सो यू शुड नोट इट डाउन, क्योंकि ज़्यादातर डेटा ऑलरेडी हमारे पास होता है सीएसवी फाइल में। अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, जैसे हम नंपाई को एनपी करते हैं उस पर करेंगे, डेटा फ्रेम डिफाइन करेंगे पांडास डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी, और सीएसवी का नाम क्या है हमारे पास, सीएसवी का नाम ये वाला। तो ऐसा क्या होता है, जब भी हमने कोई रीड करवानी होती है, हमने इंपोर्ट करनी होती है अपनी फाइल, तो हम क्या करते हैं, पी डी डॉट रीड सी एस वी, रीड सी एस वी इज अ फंक्शन, उसके बाद हम पेरेंथेसिस ब्रैकेट डालते हैं, फिर उसके बाद पेरेंथेसिस डाल के उसके अंदर नाम लिख देते हैं उसका। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डी एफ डॉट हेड करेंगे ना, और साथ में ब्रैकेट डालेंगे, तो वो पहले 5 जो होंगी, 5 वैल्यू, पहली 5 वैल्यू वो प्रिंट कर देगी सारी उसकी, जो अदर अदर फंक्शन होंगे। अब पहली पता चल गया वो नन वैल्यूज है, खाली वैल्यू को नन डिफाइन कर देता है। ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है। अब अब एक चीज, सबसे पहले स्टेप क्या होता है हमारे पास, क्लीनिंग डेटा, क्लीनिंग द डेटा। ठीक है, क्लीनिंग द डेटा। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, एक फंक्शन होता है ड्रॉपना, ड्रॉपना, ड्रॉप डुप्लीकेट्स। ठीक है, और अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो इसको रिप्लेस करना। ठीक है, रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज, रिमूव आउटलेयर्स, रीनेम कॉलम, ये सारा आज हम देखेंगे। तो पहले हम सीखते हैं हाउ टू ड्रॉप इट। ठीक है, सो आई विल जस्ट राइट df dot dropna, और in place is equals to 2। ये क्या करेगा, ड्रॉप रोज विथ मिसिंग वैल्यूज। एंड नाउ अगर आप df फिर से प्रिंट करोगे, तो वो डिलीट हो गया, एलन मस्क इज डिलीटेड नाउ। एलन मस्क की वो जो सारी रो थी वो डिलीट कर चुका है वो। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो, क्योंकि वो, अब अगर आप df प्रिंट करोगे तो वो सारा का सारा कर देगा। उसने एलन मस्क भी कर दिया, और वो जो 5 वैल्यू थी वो वाली भी कर दी है। ठीक है उसने। सो इफ आई जस्ट डू दिस, ये सेव नहीं किया हमने न्यू फाइल, वो फाइल सेव रहेगी फॉर अस, इस वर्क स्टेशन के लिए ये ऐसा ही रहेगा। तो ये हो गया आज। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट को हम रिप्लेस कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, एक डुप्लीकेट बनाते हैं इसका, यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है,
सो आई जस्ट डिड दैट। युवराज यहाँ पे भी आ गया और युवराज नरेश के नीचे भी है, ठीक है। सो ओके, सो अब उसने क्या किया कि एलन को तो इरेज किया, युवराज दो दो बार ही है, राइट। तो अब हमें इसको रिप्लेस करना है, तो डी एफ डॉट ड्रॉप अंडर स्कोर, कोई बताया मत यार प्लीज सीनियर्स को, मैं ये उनके साथ ही कर रहा हूँ, ठीक है। क्या करूँगा, इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। ड्रॉप डुप्लीकेट्स आएगा, एस आएगा यहाँ पे ना। सो अगर मैं फिर से इसको अब उसको रन कर चुका है, अब मैं डी एफ प्रिंट करूँगा। सो यू सी नाउ जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो सारी गायब हो चुकी है। सो दिस इज आर क्लीन डेटा। सो ये हमारे पास क्लीन डेटा है। अब अगर हमने रीनेम करना हो अपने कॉलम को, फॉर एग्जांपल नेम की जगह स्टूडेंट नेम लिखना है, तो क्या कैसे करेंगे। इसमें क्या किया, रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रीनेमिंग कॉलम्स, क्या कैसे करेंगे हम, डी एफ डॉट रीनेम कॉलम्स। देखो द थिंग इज, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना लेक्चर में, वो मैंने एक बार रिवाइज करके आपको पढ़ाया था। जो ये चीज है ये मेरा थोड़ा सा काफी रेगुलर थिंग है, ठीक है। when you will be doing data analysis you will be daily working with numpys pandas matplotlib, तो मैं आदत आदत हो जाएगी उसकी, ठीक है। जो बेसिक पाइथन है वेरी रेयरली यूज दैट, मतलब जो कोर हमारी होती है ना, है तो ये भी पाइथन है, बट जैसे वो हो गया, क्लास होगी, ऑप्स हो गया, वो जब पाइपलाइन वगैरह ऐसा कुछ काम करना होता है तभी यूज होती है। तो उसका रेडशिफ्ट नहीं हमने डिफाइन की, तो हमने जैसे नेम डिफाइन किया है, तो हम इसको कैसे चेंज कर देंगे, नेम को चेंज कर देना है स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के साथ, और साथ में हम डाल देंगे इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। अब इसको बस फिर से डी एफ प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगा। अब एक मिनट कुछ देखने दो मुझे, तो ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, डी एफ डॉट टू अंडर स्कोर सी एस वी प्लेन प्लेन अंडर स्कोर डेटा डॉट सी एस वी एज सेव कर लेंगे, और जो इंडेक्स है, जो ये चीज़ें, इसको हम फॉल्स कर देंगे। फॉल्स, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे, तो ये क्लीन डेटा, ओ सॉरी कोई खुल गया बाहर, तो द क्लीन डेटा इज वेरी क्लीन, 1 2 3 4 बड़ा प्रॉपर आया हमारे पास, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे जो इंडेक्सिंग थी वो प्रॉपर नहीं थी, कहाँ गया हमारे पास 0 1 3 4, ठीक है, वो इंडेक्सिंग हमने सही कर दी। दैट्स इट फॉर मैटप्लोलिब, बाकी हम रास्ते में सीखते जाएंगे। तो ये था हमारा मैटप्लोलिब का चक्कर सारा, बड़ा छोटा सा था, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टाइम हमारे पास अभी है, सो वी कैन डू सम पार्ट ऑफ मैटप्लोलिब। अभी थके तो नहीं ना, क्योंकि वैसे हम ऑलरेडी 1 hour 15 minutes 15 17 minutes कर चुके हैं। अगर आप थक गए हो देन विल कंटिन्यू। यस यस, ओके। सो आर यू टायर्ड और वी जस्ट गो विद मैटप्लोलिब टुडे ओनली। देखो मैटप्लोलिब थोड़ा सा लेंदी काम है, ठीक है। तो लेंदी इन द सेंस कि लग जाएगा आधा घंटा, आधा पौना घंटा और लगेगा, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी अलग अलग फीचर्स हैं, नॉर्मल्स वो हैं, फंक्शंस हैं, उसके बाद सब प्लॉट्स हैं, ठीक है, बार प्लॉट्स हैं, तो उसका गॉसियन वगैरह थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हल्का हल्का टच की कर्व, स्कैटर प्लॉट, काफ़ी कुछ है, तो उसको आप देख लो कैसे करना है। कैन कंटिन्यू, तो ओके, सो वी विल कंटिन्यू। दैट्स व्हाट डेडिकेशन आई नीड, दैट्स द डेडिकेशन आई नीड, तो हम आई डू दैट मैटप्लॉटलिब। वैसे सही, एक्चुअली फाइल बहुत सही बन जाएगी, क्योंकि मैटप्लॉटलिब पर पांडास वो सारा सारा एक ही उसके अंदर लेक्चर के अंदर आ जाएगा, तो सारा सही रहेगा। सो ओके, सो मैं ऊपर ऊपर से कराता हूँ थोड़ा थोड़ा, जो मेन मेन है। इसके अंदर ना एरर बार, एरर प्लॉट भी होते हैं।
एरर प्लॉट ना अब हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। हम ना एक डेटा उठाएंगे जिसके अंदर एरर भी होगा, तो फिर हम एरर करेंगे। जब मैं बता रहा हूँ ना, जब हम एक एस्ट्रोनॉमी का, मैंने आपको बताया कुछ कुछ हम एस्ट्रोनॉमी के डेटा भी उठाएंगे। कुछ कुछ ग्लिम्स मैं दूंगा कि एस्ट्रोनॉमी रिसर्च कैसे करते हैं, चाहे छोटा सा एक रिसर्च प्रोजेक्ट उठा लें, नॉट लाइक अ पब्लिशेबल बट एक छोटा सा एनालिसिस, उसके थ्रू हम काफी कुछ सीखेंगे। क्योंकि बिना ऐसे एप्लीकेशन के कोई चीजें नहीं होती फॉर मी, मतलब मेरे को एप्लीकेशन चाहिए होती है तभी मैं कुछ पढ़ने का मेरा इंटरेस्ट होगा। सो हाउ टू इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट बाय प्लॉट एज plt। ये थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ता है, ऐसे लिखना पड़ता है import matplotlib as plt। तो इसमें ऐसे लिखना पड़ता है import matplotlib dot pyplot as plt। ठीक है। अब our first task is task 1, make sine curve। उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले अपना दिमाग लगाओ कि अगर कोई भी मैथ्स का प्लॉट बनाना है तो हमें क्या क्या चाहिए होता है। एक ग्राफ चाहिए होगा, एक्सिस चाहिए होंगी, एक्सिस पे नंबर होने चाहिए, और नंबर कैन बी एनीथिंग, रैंडम भी हो सकते हैं, कोई वैल्यू पर स्पेसिफिक भी हो सकती है, रेंज हो सकती है। सो अब हमारे पास दिमाग चल रहा है कि वो रेंज हो सकती है, तो रेंज के अंदर हम लिनस्पेस भी डाल सकते हैं। लिनस्पेस मतलब कि कोई रैंडम वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू जो हम डिफाइन कर सकते हैं, इतने से इतना ले ले और इतने के इतने से ग्राफ बना दे। अब अगर लिनस्पेस अगर हमारे पास जरूरत पड़ रही है तो लिनस्पेस के लिए हमें नंपाई भी चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, नंपाई भी इंपोर्ट कर लेंगे, नंपाई एज एनपी। प्लॉट के लिए हमें मैटप्लॉटलिब चाहिए होगा, और नंबर्स वगैरह इंटीग्रेट करने के लिए एक्सिस के अंदर हमें वो चाहिए होगा। तो कैसे करेंगे, एक्स के अंदर जो एक्स एक्सिस के नंबर होंगे हमें एक्स डिफाइन कर देते हैं उन्हें, ठीक है। एनपी डॉट लिनस्पेस 0 से लेकर 10 तक कर लो, उसके अंदर 100 वैल्यूज डिफाइन कर दो। उसके बाद बाय एनपी डॉट साइन एक्स, ये ऑलरेडी होता है उसमें, ठीक है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा फंक्शन है हम उसको y डिफाइन कर देते हैं, राइट। तभी प्लॉट बनता है उसका y एक्सिस पे, y विद रिस्पेक्ट टू x। बेसिकली ये क्या है, y np डॉट साइन x, साइन की वैल्यू x के अंदर, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको। तो बेसिकली हमने फंक्शन डिफाइन किया है यहाँ पे, डिफाइन अ फंक्शन, ठीक है। यार एक सेकंड रुको यार, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके, सो जैसे ही कर लिया हमने, बढ़ते हैं आगे। अब ना इसमें बहुत चीजें होती हैं, मतलब वो वही चीजें नहीं मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं आज तक वो ही नहीं यूज करता, बट मैंने नोट्स में पता नहीं क्यों डाली हुई है वो एक्स्ट्रा फीचर्स थोड़े से इसके। बट वो कहीं पे यार ऐसे, मतलब टाइम पास ही है वो, फालतू का, नहीं नहीं भी करोगे देन ऑल्सो यू आर फाइन। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड फिगर, और हम यहाँ पे फिगर साइज डिफाइन करते हैं, ये जरूरी होता है, ठीक है। फिगर साइज, फिगर साइज आप देखिए जो कैसे कैसे करते हैं। तो 6 6 क्रॉस 6, मतलब एक स्क्वायर फिगर बने। पीएलटी, पीएलटी मतलब यहाँ पे कमांड यूज हो रही है मैटप्लॉटलिब की, यहाँ पे कमांड यूज हो रही है मैटप्लॉटलिब की, पीएलटी डॉट फिगर, जो फिगर होगी ब्रैकेट, उसके बाद फिगर साइज इज इक्वल टू जो हमारे पास मैट्रिक्स जो साइज होगा हमारे पास ग्रिड का, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं कि तू ग्रिड बना, ग्रिड बना, ठीक है। उसके बाद हम एक डिफाइन करते हैं जो एक्स लेबल होगा, एक्स लेबल मतलब एक्स एक्स एक्सिस पे उसने क्या लिखना है, एक्स एक्सिस पे लिखेगा वो एक्स की वैल्यूज। पी एल टी डॉट वाई लेबल, इस पे लिखेगा हमारे पास साइन एक्स। गाइस एक सेकेंड, क्लास लग रही है पाइथन कितने बजे? 11 बजे। दसो चल कोई सारे से गल करनी। अच्छा तो एग्जांपल दे रहा ਸੀਗਾ, इंपोर्ट नरेश
एज एज 100। चल कोई 11 बजे तक है बस मैं लास्ट टॉपिक करा रहे हैं मैटप्लोलिब। बस ठीक है 11 बजे अब मैं थोड़ी कमरे में कमरे से आ दूँ। मनजीत से तुम मैं अच्छी आ रहा चलो ठीक है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फिर कॉल कर दूंगा, है ना। ओके, सो हमारे ही डीआर आए थे अभी, तो उनको आई हैव गिवन सम टाइम, बट प्लीज डोंट टेल कि उनकी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो या साइन एक्स लिख देंगे यहाँ पे। तो पी एल टी डॉट टाइटल, टाइटल कैसे डालेंगे, मतलब कि टाइटल क्या है, साइन एक्स का कर्व। मतलब ये थोड़ा सा ये मिनिमम बेयर होता ही है यार, कि अगर कोई आप अच्छी सी प्लॉट बना रहे तो उसको डिफाइन तो करना ही है ना। तो अब क्या करेंगे, पी एल टी डॉट प्लॉट, प्लॉट क्या करेंगे, एक्स वाई। बेसिकली एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यूज होंगी एक्स की, और वाई एक्सिस पे क्या होंगी वाई। वाई की है बेसिकली फंक्शन। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, पी एल टी डॉट शो करेंगे, कि जो हमने करना है उसको शो भी तो कर, ठीक है। तो ये मिनिमम बेयर थिंग्स होती हैं जो आपको करनी ही है हर बार। इसके अलावा बड़ी और फीचर्स होते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करके। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, एंड यू हैव योर फर्स्ट कर्व, यू हैव योर फर्स्ट कर्व। तो आप देख सकते हो कि जीरो पे साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। ये कुछ 1.55 जो पाई की वैल्यू होती है, राइट, उस पे अराउंड ऐसा आएगा, ठीक है। वन यहाँ पे आ गया ना, 1.55 यहाँ पे आ गया। तो पाई नहीं, पाई नहीं, सॉरी, पाई बाय टू, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाई बाय 1.57 के आसपास। हाँ बस तुम उतना लगा लो, पाई बाय टू पे हमारे पास ऐसा होता है, फिर पाई पे फिर से जीरो हो जाता है, फिर ऐसा 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 कर्व बन गया। क्या सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कॉस कर दो, तो ये कॉस का कर्व दे देगा। हालांकि मैंने अभी साइन वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो देख लेना। तो मैं अभी साइन का बनाता हूँ। तो ये क्या हुआ, हमने क्या डिफाइन किया था, वाई लेबल, जो वाई एक्सिस है उसको ऐसे करो, ऐसे लिखियो, थोड़ा फैंसी बनाने के लिए, कि यहाँ पे सारी एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे वाई की वैल्यू जा रही है, एक्स की वैल्यू जा रही है, यहाँ पे वाई की वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। उसके बाद हम इसको सेव भी कर सकते हैं, बट हम वो बाद में देखेंगे कि कैसे सेव करना है। तो एक दो और बना लेते हैं पहले हम, ठीक है। सो एक्चुअली इट्स वेरी गुड थिंग। तो हम एक और चीज़ बनाते हैं, इसको मैं कॉपी करूँगा सारे को। अब हम बनाते हैं टैन का, मेकिंग टैन का। हाँ, तो ये साइन इनवर्स का कर्व बना है, ठीक है, उस रेंज के अंदर। पता नहीं क्या ही बना है। तो फिर मैं ए टैन लेता हूँ एक बार। ए टैन का मतलब तुम्हारा वो इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़े से पंगे ले रहा हूँ, पहली बार ही ले रहा था, मतलब हमने कल यूज़ किया था ना ए टैन, तो मैं देख रहा था। अगर यहाँ पे मैं इसको ऐसे करता हूँ, हाँ ये यहाँ पे नहीं चलता ऐसे, ठीक है, सारी जगह नहीं चलता, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, वही टैन का कर्व बनाऊंगा, सिर्फ टैन लिखूंगा, यहाँ पे साइन की जगह टैन कर दूंगा, टैन कर दूंगा, एंड वी हैव दिस टैन कर्व, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये हमारा टैन कर्व हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। उसके बाद वेट a second, there is some mistake, I guess. I'll just remove it for now. कुछ गड़बड़ नहीं लग रही, लाइक टैन का कर्व है तो बस टैन का कर्व लग नहीं रहा, मतलब टैन का कर्व है। इसको मैं थोड़ी सी पंगे लेते हैं। 0 से 2 टाइम्स ऑफ एन पी डॉट वाई तो प्रिंट कर अलग वैल्यूज लेगी। अच्छा, सिमेट्रिक बनाने के लिए मैंने तरह से क्या किया, उसमें कि 2 पाई तक वैल्यूज ले ली, 0 से 2 पाई तक वैल्यूज। तो वो ऐसे वो थोड़ा सा वो हो गया, तभी वो थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल लग रहा था पहले, क्योंकि ज़्यादा वेरिएंस लिया हुआ था हमने, ठीक है। तो मतलब वो कुछ गड़बड़ थी उसमें। सो देर इज वन मोर थिंग, इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ है दैट यू कैन यूज। जो सारी चीज़ें आपने करनी है ना, एक तो प्लॉट के बाद जब एक फंक्शन है सेव फिगर, प्लॉट डॉट सेव, प्लॉट डॉट
सेव फिग, और यहाँ पर tan x, या फिर हम लिख दो हाँ tan x प्लॉट, या फिर माई फर्स्ट प्लॉट डॉट png, और उसके बाद आप कॉमा dpi भी डाल सकते हो। dpi बेसिकली वो होती है कि कितना क्लियर होएगा प्लॉट, अगर ज़्यादा ज़्यादा डाल दोगे मत डालना, उतनी प्रोसेसिंग लेगा तुम्हारा कंप्यूटर। सो डाल दो, इनफ है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है यहाँ पे जो मैं कभी यूज़ नहीं करता बट मेरे नोट्स में है, स्टाइल यूज़ क्लासिक। सो यू सी, ये यहाँ पे हम जाएंगे ना, तो यहाँ पे png आ चुकी है फाइल सेव। अब ऐसे ही तुम क्या कर सकते हो, png तो सेव की है, यहाँ पे तुम कॉपी करके से पीडीएफ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये पीडीएफ में ही सेव हो जाएगी। बेसिकली क्या होता है, पीडीएफ इज वेरी क्लियरली सेव, जितना हमारे पास पिक्सल चाहिए वो सारा सेव हो जाता है। तो पीडीएफ एक्चुअली जब हम लेटेक्स के अंदर हम अपना वो करते हैं ना, रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो हम पीडीएफ के अंदर ही प्लॉट को हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, हाँ सच एक और बात, जैसे ये ना लाइट डार्क हाई कंट्रास्ट फ्रेम है, तो ये अपने आप एडजस्ट कर लेना, तो मैंने हाई कंट्रास्ट किया हुआ, तो लाइक दैट, तो ऐसा ऐसा है। तो अगर आपको हुआ, सो देर आर सम फैंसी डिजाइन्स जो मैं आपको बता देता हूँ, बट जैसे जैसे हम प्लॉट्स बनाएंगे ना, देन इट विल बी मोर गुड। ठीक है, तो चलो मैं रहने देता हूँ, वो एक दो मैं आपको इसके अंदर ही बता देता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा ऐसा है नहीं, वो टाइम वेस्ट वाली ही बात है। ठीक है, दैट यू कैन डू फ्रॉम गूगल ऑल्सो, कि यार इसको फैंसी बना दे। ठीक है, तो हम मिनिमम बेयर कर लेते हैं जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम एक एक हम 2 in 1 प्लॉट फॉर साइन एंड कॉसाइन कर, एक ही प्लॉट में दोनों दोनों हमने शो करने हैं। तो क्या लूंगा मैं फिर से, x इज इक्वल्स टू नम्पाई डॉट लिनस्पेस। ठीक है, डिफाइन करता हूँ 0 से 10 तक, और ये करता हूँ। उसके बाद y को अभी मैं डिफाइन नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि y हमारे पास वेरिएबल है, हमारे पास y के अंदर हमने कोस भी प्रिंट करना है, साइन भी प्रिंट करना है। तो क्या करता हूँ एक बारी कि plt डॉट प्लॉट करता हूँ सीधा, x पे तो x ही रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, numpy डॉट साइन x। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे एक होती है चीज ग्रीन, एक लाइन होगी, लाइन लाइन भी प्रिंट होगी, और साथ में ये भी होगा। और देर इज समथिंग कॉल्ड एल वी इज इक्वल्स टू 10 अगर कर देते हैं, लाइन विड्थ मतलब 10 यूनिट मोटी लाइन होगी। ठीक है, और अभी कर देते हैं, देख लेना, लेवल करेंगे उसको साइन एक्स, उसके बाद इसको मैं सीधा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे साइन की जगह कॉस कर देता हूँ, और इसको क्या करता हूँ, कॉलम बी कर देता हूँ, इसको सेम रखता हूँ, इसको कॉस कर देता हूँ, यू विल सी व्हाट्स चेंजिंग। ओके, सो मैं बताऊंगा कैसे कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं, तो आप वो बाद में एक्सप्लोर कर लेना। मैं एक रफली लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बाद में। अब इसके पास क्या होगा कि हमने plt डॉट एक्सेस करने हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है ताकि वो हो जाए सिमेट्रिक बने, एक्सेस जो होंगे वो इक्वल रहेंगे। ठीक है, दिस इज द थिंग। plt डॉट लीजेंड कभी नहीं भूलना। ठीक है, ये जब भी व्हेन वी आर डूइंग वर्क विद लेबल्स, दीज लेबल्स नॉट एक्स लेबल्स एंड वाई लेबल्स, ओनली लेबल्स जो हम इसके अंदर plt डॉट प्लॉट के अंदर लिखते हैं, तो हमें ये वैल्यू लीजेंड plt डॉट शो के ऊपर जस्ट डालनी होती है। plt डॉट शो के ऊपर डालनी है, इससे ऊपर नहीं या इससे पहले नहीं डालनी, उसके नीचे ही डलेगी। ठीक है, इसके साथ। ठीक है, सो आई जस्ट प्रिंट इट। अब ओके, सो पहली बात तो आपने देख लिया होगा कि कितनी मोटी लाइन आई है जब मैंने लाइन विड्थ को किया, और दूसरी बात आपने ये भी देख ली होगी कि डिफरेंस क्या है, राइट। तो अब अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करता हूँ, तो दिस इज लाइक दिस। अब मैं इसको एक बार छोटा कर देता हूँ, ये बहुत गंदा लग रहा है। सो यू सी दिस इज बेटर। और ये लेबल है कि जो ये वाली लाइन है वो साइन एक्स, जी का मतलब ग्रीन, ऐसे। अब इसके अंदर मैं वैरायटी अलग अलग डाल सकता हूँ, तो क्या क्या होती है कि माइनस माइनस जी होता है, माइनस माइनस सी ट्राई कर सकते हो आप, माइनस डॉट ए ट्राई कर सकते हो आप, मतलब ब्लैक डॉट्स लगेंगी।
फिर उसके बाद डॉट डॉट आर मतलब डॉटेड रेड, डैश, ये एक्चुअली डैश डॉट ब्लैक हो गया हमारे पास। ऐसे ऐसे अलग अलग कलर्स होते हैं यार, ये मैंने एक दो तीन चार के लिख दिए मैंने, तो यू कैन ट्राई इट आउट। आप सीधा पूरा का पूरा नाम भी लिख सकते हो, येलो, कलर इज इक्वल्स टू येलो, वो येलो आ जाएगा। ऑरेंज, ऑरेंज आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। लाइन एस एल एस इज इक्वल्स टू कॉलम में डाल सकते हो। तो वो बेसिकली वो छोटे छोटे डॉट्स बन गए। अगर इसको मैं ब्लैक कर दूँ ना, एक हो गया ये शॉर्टकट कि इस और इसको एल एस और कलर को मिक्स करके सीधा आपने ये कर दिया, ये शॉर्टकट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करके आपको दिखाता हूँ ना, तो ये ऐसा हो जाएगा। एक हो गया ये लाइन कलर भी डिफाइन किया, लाइन विड्थ भी डिफाइन की, और एल एस भी डिफाइन किया, लाइन स्टाइल भी डिफाइन किया। सो बेसिकली एल वी इज इक्वल्स टू लाइन विड्थ एंड एल एस इज इक्वल्स टू लाइन स्टाइल। ओके, सो ये हो गया, ये चीजें हो जाती है। पर वही सेम आप सेव कर सकते हो, फॉर्मेट अलग अलग चेंज कर सकते हो, एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद क्या कौन कौन से फाइल में आप सेव कर सकते हो? ईएसपी फाइल में, जेपैग फाइल में, जेपीजी फाइल में, पीडीएफ फाइल में, पीजीएफ फाइल में, पीएस फाइल में, रॉ फाइल में, एसवीजी फाइल में, एसवीजेड फाइल में, टिफ फाइल में, टिफ डबल एफ वाली फाइल में, वेब इमेज फाइल में, सारी में कर सकते हो आप, मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्लॉट्स, बार प्लॉट, स्कैटर प्लॉट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक एक्स डिफाइन करते हैं, np डॉट रैंडम, ये नोट्स में नहीं है, अभी मैं खुद ही कर रहा हूँ। np डॉट रैंडम 1 से लेके 100 तक 100 वैल्यू प्रिंट कर, y इज इक्वल्स टू np डॉट रैंडम, रैंडम 100 से लेके 1 से लेके 100 वैल्यू प्रिंट कर, 200 टाइम्स 200 वैल्यूज। plt डॉट स्कैटर, सीधा लिखेंगे plt डॉट स्कैटर x and y plt डॉट शो। ठीक है, अरे यार रैंडम के अंदर थोड़ी ना होती है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया मैंने क्या? ओह अब वो पंगा पता है क्या पड़ा है कि उनका साइज सेम नहीं है, वेरिएशन ज्यादा है। यू सी ऐसा स्कैटर प्लॉट बन गया। अब अगर मैं इसको ना 10 कर देता हूँ, यू सी ऐसा ऐसा स्कैटर प्लॉट बन गया उसका। अभी मैंने लेबल्स लगा देता तो अलग अलग हो जाता। अब ये ना हम मोंटी कार्लो में यूज करते हैं स्कैटर प्लॉट। अगर आपने मोंटी कार्लो पढ़ी होगी तो वो प्रोबेबिलिटी होती है कि आपने कितने कितने उसके ऊपर पॉइंट्स डाले कि वो कितनी एक्यूरेसी उसमें कर दी। तो वो पॉइंट्स हम ऐसे ऐसे ना स्प्रेड करेंगे उसके अंदर, वो हम रैंडम पॉइंट्स ही करेंगे, वहां पे ये काम आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको पता लग गया होगा, जैसे मोंटे कार्लो में जब हम पाई की वैल्यू निकालते हैं सर्कल के अंदर रैंडमली हम बॉल्स ड्रॉप करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे सीनियर भी हैं, राइट? तो उनको पता होगा मोंटे कार्लो में हम रैंडम वैल्यूज ड्रॉप करते हैं और एक्यूरेट वैल्यू आ जाती है। जितने ज्यादा पॉसिबिलिटीज हम उसके अंदर क्रिएट करते हैं उतनी ज्यादा हमारे पास वैल्यू आ जाती है एक्यूरेट। ठीक है, तो उसके अंदर हम रैंडम वैल्यू जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा हम करेंगे। ठीक है, बाकी तो यही है। उसके बाद हमारे पास एरर प्लॉट आएंगे। एरर प्लॉट वी विल डू, कर ही लेते हैं यार, एरर प्लॉट ना कर लेते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं साइन की ही, उसके बाद सब प्लॉट करके खत्म करते हैं। उसके बाद क्योंकि ऐसे तो हमारे पास हिस्टोग्राम भी होता है यार, कर ही लेते हैं, छोड़ो। पाई चार्ट नहीं करेंगे, पाई चार्ट कभी मेरे काम नहीं आया। पाई चार्ट हाउएवर आई विल अटैच इन द गिटहब, गिटहब या कहीं पे। ठीक है, मैं सर्च करूंगा कि पाई चार्ट भी ऐड कर दूंगा बाद में अगर करना होगा, पर वो कभी काम नहीं आता। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम एक डेटा जनरेट करते हैं। अ, हम एक डेटा जनरेट करते हैं 100 पॉइंट्स का।
np डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल। एक और फीचर है नॉर्मल, क्या करता है बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा विद मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1 ऐसे, ठीक है। और साथ में क्या लेगा, 100 पॉइंट्स ले लेगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with mean 0 and standard deviation is equals to 1। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, plt डॉट हिस्ट नाम की चीज होती है, इसके अंदर हम डेटा प्रिंट करेंगे। बिन हम क्या करेंगे, ऑटो ले लेंगे, नहीं हम पहले बिन हम चेंज करके देखेंगे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक लेबल डालते हैं जिसे हम करते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है। बाकी तो कुछ खास है नहीं। plt डॉट लीजेंड करेंगे क्योंकि हमने लेबल डाला है, डॉट शो करेंगे एंड उसने एरर दिया। क्या एरर है, bin has unexpected। एक्सक्यूज मी। bin ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर। ऑफ कोर्स होगा, बिन्स होता है, ठीक है। स्पेलिंग का भी इशू बढ़ जाता है यार, वो बिन्स होते हैं। बिन्स मतलब कितनी डंडियां इसने खड़ी कर ली है यहाँ पे, ये मैंने ऑटो डाली थी, इसने रैंडमली कर ली है। अब अगर मैं इसके अंदर 10 डाल दूंगा ना, तो 10 डंडियां ही खड़ी होंगी गिन के पूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। वो ऐसे रैंडम वेरी वो उसने कर दिया, ठीक है। तो ऐसा ऐसा आप कर सकते हो, इसको और बढ़िया कर सकते हो। इसके अंदर एक आप ऐसे फिट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे एक दो वो वाला, वो भी हम सीख लेते हैं यार। वो नहीं सीख रहे, हम वो नहीं सीख रहे, वो हम गोशन के अंदर सीखेंगे, ठीक है। वो अभी नहीं सीख रहे क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है, वो हम गोशन के अंदर सीखेंगे, तो हम सीखेंगे भी अच्छी तरह, ठीक है, कि कैसे फिटिंग वगैरह होती है, ठीक है। ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा फालतू हो जाएगा काम। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना, जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक लाइन क्रिएट करनी, तो यू कैन ट्राई इट आउट, बट आप अपने टाइम के अनुसार आप कर सकते हो, बट ये अभी इतनी जरूरत नहीं है। उसके बाद हम सीखते हैं एरर प्लॉट। एरर प्लॉट भी वैसे मैंने एग्जांपल के साथ ही कराना था, बट मैं एक बार करा देता हूँ, ऐसे कुछ फिर रह जाएगा। थोड़ा थोड़ा मतलब पता होना चाहिए ना कि कैसे ऐसे हिस्टोग्राम बना दिया हमने। एरर प्लॉट देखते हैं, एरर प्लॉट हम बनाते हैं साइन का। तो हम क्या करते हैं, पहले वही साइन दो डेफिनेशन हम यहाँ से उठाते हैं सीधा, ठीक है। एक तो यहाँ पे साइन का कर्व बनाया था ना, ये हम कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम एक एरर एरर की वैल्यू रैंडम जनरेट करते हैं। एरर बेसिकली कई बार हमारे पास, ज़्यादातर हमारे पास एस्ट्रोनॉमी डेटा में तो ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा एडेप्टिव ऑप्टिक्स होती है। एडेप्टिव ऑप्टिक्स में क्या होता है कि जब एरीज रिंग बनती है ना, ओहो ब्रदर नेट का इशू चल रहा है, हो गया हो गया। अरे यार आज की मीटिंग्स ना यार, नेटवर्क इशू बहुत आया है। गाइस आई एम रियली सॉरी फॉर दिस कनेक्शन इशू। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਕਰੀਨ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਵਾਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਲਾਂकि ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾर्डिंग ਹੋਏਗੀ ਉਸ 'ਚ मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज इट्स रिकॉर्डिंग ऑन OBS। सो इज इट, was there any big glitch या a minor glitch was there? एक बार प्लीज ਮੈਨੂੰ कमेंट्स 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।
Was there a big glitch 3 minutes ago? Oh. So basically, I guess you guys missed the histogram. Histogram से अपन किवे कितना है? I'll just explain this fastly. कि 0 से 1 तक हमने किया. 0 से 1 बेसिकली क्या है? 0 मीन होगा उसका और हमारे पास 1 स्टैंडर्ड डेविएशन होगी. जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन के और मीन के फॉर्मूला होते हैं उसके अंदर 100 वैल्यूज होंगी. उसके बाद हम डेटा वर्सेस बिन मतलब कितने हमने डंडे खड़े करने हैं यहाँ पे ऐसे वाले. तो ये हमें बता देगा. जैसे हमने ऑटो भी कर सकते हैं इसको. ऑटो हम बट स्ट्रिंग से करेंगे और पर्टिकुलरली इंटीजर हम यहाँ पे bin इज इक्वल्स टू हैशटैग bin इज इक्वल्स टू इंट वेयर फॉर एग्जांपल bin इज इक्वल्स टू 30 भी कर सकते हैं 30 या 20. ठीक है. तो उसके बाद लीजेंड हमारा लगाना जरूरी है क्योंकि हमने एक लेबल प्रोवाइड किया जिसका हमने नाम ही हिस्टोग्राम रख दिया और उसके बाद शो कर दिया नॉर्मली. उसके बाद हम देख रहे थे कि एरर बार कैसे करते हैं. एरर बार में हमने एग्जांपल ले ली साइन कर्व की विद एरर. और एरर पहले हमने एक्स और वाई वैसे ही डिफाइन कर लिया जैसे हम करते हैं. उसके बाद 0.1 प्लस 0.1 0.1 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय एक्स. तो एक्स की वैल्यू है फॉर एग्जांपल ये जस्ट ऐसे कर लिया कि जो एक्स की वैल्यू है उसमें 0.1 का डिफरेंस होगा. मैं आपको दिखाता हूँ कैसे. तो पी एल टी डॉट एरर बार करेंगे और एक्स एंड वाई एरर इज इक्वल्स टू एरर. ठीक है. ये ऐसा ही होता है. उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ना एक चीज़ होती है कि स्टाइल क्या होगा एफ एम टी क्या करेंगे हम ज़ीरो करेंगे ओ करेंगे 0 ओ. बेसिकली हम इसको ऐसे लिखेंगे 0 /o. ठीक है. फिर उसके बाद कलर हम डिफाइन कर देते हैं. पर्पल कर देते हैं पर्पल. फिर उसके बाद ई कलर एरर बार्स का जो कलर होगा वो हम कर देते हैं ऑरेंज. वैसे ब्लैक भी चलेगा. ब्लैक इज गुड. बी कर देते हैं फॉर ब्लैक. मे बी ब्लू ना आ जाए. मुझे ये दिक्कत है. तो बाकी कैप का साइज जो उसके कैप का साइज होगा उसको हम 4 डिफाइन कर सकते हैं. ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको. ये आप कर सकते हैं. इसमें पंगे ले सकते हो आप. ठीक है. अब ये एरर गिरेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं डालना था. उसके बाद की लाइन विड्थ. अब देखो मैंने ई एल भी लिखा है बट ये एरर ना दे दे. आई ऑल्सो डोंट नो. ठीक है. क्योंकि एरर लाइन वेट्स पूरा लिखना होता है वैसे तो ई लाइन वेट्स पूरा लिखना होता है बट बाकी मुझे पता नहीं. एक बार देख लेते हैं. वैसे करना चाहिए. टाइटल फर्स्ट एरर बार प्लॉट. ठीक है. पी एल टी डॉट एक्स लेबल क्या होगा एक्स वैल्यूज एक्स. ठीक है. उसके बाद पी एल टी डॉट वाई लेबल क्या होगा हमारे पास साइन एक्स. ठीक है. उसके बाद क्या होगा हमारे पास पी एल टी डॉट प्लॉट कर देंगे सीधे. पी एल टी डॉट शो कर देंगे सॉरी. ठीक है. अब ये क्या है कि कॉमा सेपरेट नहीं किया. एक तो यहाँ पे फिर से कॉमा डालना भूल गया. ओहो कॉमा. ओके. सो यहाँ पे इसने एरर घेरा है क्या कि हाँ वही वाला एरर कि ये वर्ड ही नहीं है. तो हम क्या इसको पूरा लिखेंगे लाइन विड्थ. ठीक है. सो यू सी देयर आर लाइन. अब इसको ना मैं ब्लू की जगह यहाँ पे ऑरेंज करता हूँ थोड़ा सा अच्छा दिखेगा. सो यू सी यहाँ पे एक वो बन गया. इसने क्या किया जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे पॉइंट वन का एरर बढ़ता जा रहा है. ठीक है. क्या किया 0.1 तो एरर रहेगा उसके अंदर इतनी इतनी एक्स की वैल्यू जैसे बढ़ रही है उसके अंदर पॉइंट पॉइंट मल्टीप्लाई करके बढ़ाई जो है. तो ये ऐसा प्लॉट बन गया. सो ओके. सो उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है सब प्लॉट्स. सब प्लॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो वो हमें पता होने चाहिए. और उसके बाद अभी एक और टॉपिक है जो हमने पांडास की जो फाइल बनाई थी अगर हम उसे प्लॉट करें. ठीक है. तो हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं. ठीक है. थोड़ा सा मैंने आपको पहले कहा था कि लेक्चर लंबा जाएगा. बैठे रहो. ठीक है. बट हाँ ये काम जरूर आएगा. ठीक है. सब लॉस. ये सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है. अगर आपने ये मिस कर दिया ना तो आपकी मौत है.
तो आपको कुछ नहीं आता पाइथन का, ठीक है, फॉर कंप्यूटेशनल फिजिक्स। तो आपकी सीधा मौत है, आप मतलब कुछ नहीं कर पाओगे। ये आपको लेक्चर कंपल्सरी लगाना, ठीक है। उसके बाद हम ये करते हैं सब प्लॉट्स। तो हम क्या करेंगे, सीधा दो प्लॉट्स बनाने हैं। दो तरीके होते हैं यार, देखो। एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, फिर से वही आ गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। और एक होता है सीधा 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 सब प्लॉट्स का वैल्यू को यूज करो, उसके अंदर अपना पैनल डिफाइन करो कि कितने बाय कितने का प्लॉट चाहिए, वैसे बना लो। हम दोनों चीजें करते हैं। पीएलटी पहला सिंपल वे से करते हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लॉट, यूजिंग पीएलटी डॉट सब प्लॉट्स, सब प्लॉट, ठीक है। पीएलटी डॉट सब प्लॉट 211, मतलब इसके अंदर क्या होना चाहिए, पहले रोज डिफाइन कर रहे हैं कितनी होगी, फिर कॉलम डिफाइन कर रहे हैं कितने होंगे, फिर पहले पैनल नंबर डिफाइन करते हैं। पहला नंबर मतलब कि जो हमारा पहला प्लॉट होएगा वो क्या होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पी एल टी डॉट प्लॉट। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन है, नंपाई डॉट साइन एक्स, ठीक है। एक्स हमने पहले डिफाइन किया हुआ है यार, लिनस्पेस वाला, मैं फिर से नहीं लिख रहा। उसके बाद हम इसके अंदर डिफाइन कर देते हैं, उसका स्टाइल क्या होगा, -b। फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे पहले नंबर 2 कर देते हैं, जिसके अंदर हम कॉस्ट बना देते हैं, ठीक है। इसका डिजाइन हम कर देते हैं कॉलम ब्लैक, ठीक है। एक मिनट, ओ, उसके बाद plt डॉट शो। अब ये हमारे पास ऐसा बन गया कि दो रोज हैं और हर रो के अंदर हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है। मतलब टोटल एक कॉलम है, और उसके बाद पहले लाइन पे हमारे पास साइन एक्स बना हुआ है, उसके बाद दूसरे में हमारे पास वो बना हुआ है। ये हमारा एक स्टाइल हो गया सब प्लॉट का। ये ठीक है, बट ज्यादातर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज करते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा मतलब लगता है कि हाँ पढ़ा लिखा बंदा कर रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बट तो मैं तो ऐसे ही देखता हूँ कि हाँ, पर मैं कभी कभी दूर नहीं कर लेता हूँ यार, जब जैसे हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूजिंग। अब इसमें क्या करना होता है, पहले ही हमें डिफाइन करना होता है, जैसे np डॉट लिनस्पेस। यार लिनस्पेस लिख लिख के मैं थक गया हुआ है, इसको मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, मैं पता नहीं बार बार क्यों लिख रहा हूँ। तो ऐसे हम 2 पाई तक ले लेते हैं हम यहाँ पे वैल्यू। अब ये पता है ना मैंने कैसे किया है, 2 पाई, पाई को हम ऐसे लिखते हैं np डॉट पाई, ठीक है। ऐसा 100 यूनिट्स ले लेगा वो अंदर। फिर उसके बाद y1 हमारे पास क्या होएगा, np डॉट साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक cos x हो जाएगा, ठीक है, y2। अब अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बड़ा फीचर होता है कि फिग और एक्सेस का, एक्सेस, इसको हमने डिफाइन करना होता है यूजिंग plt डॉट सब प्लॉट। वही होता है 2,1, मतलब रोज कोमा ग्रिड को डिफाइन कर रहे हैं, 2 क्रॉस हैशटैग 2 क्रॉस 1 का ग्रिड होगा, वही रोज मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। ऐसा हमने डिफाइन किया। अब हम क्या कर देते हैं, एक्सेस एक्सेस 0 पे, मतलब इंडेक्स 0 पे कौन सा प्लॉट होगा, डॉट प्लॉट plt plot प्लॉट एक्स कोमा y1, और उसका डिजाइन क्या होगा, -g। उसके बाद सेकंड प्लॉट क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट इंडेक्स पे y2 का, और हमारे पास वो क्या होगा, o। फिर उसके बाद हम नॉर्मली क्या कर देंगे, plt डॉट शो कर देंगे। सेव वगैरह वैसे ही होएगा जैसे ऊपर लिख देना कुछ सेव करना है, ठीक है। कोड, अच्छा कोर्स लिख दिया है, कोड लिख दिया यहाँ पे कोर्स। उसके बाद वो क्या कहता है कि यहाँ पे ये भी एरर दे रहा है, सब प्लॉट आएगा ना बेटे, ठीक है। ये हो गया, ये दो मेथड हो जाते हैं।
इसके बाद अब तुम यहाँ पे लेबल लगा सकते हो, लेबल इज इक्वल्स टू साइन एक्स। फिर उसके बाद वही चक्कर है यार, यहाँ पे तुम ऐसे टाइटल भी ऐड कर सकते हो, बड़ा कुछ कर सकते हो, मतलब बहुत कुछ कर सकते हो। इट्स वेरी वास्ट थिंग। वास्ट क्या मतलब, तुम कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हो इसमें। अब ये प्लॉट नहीं किया इसमें, कुछ लिखा नहीं, क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने वो नहीं डाला पी एल टी डॉट लीजेंड। अब वो डाल रहा है, ठीक है। अब एक दिक्कत हो रहा है, उसने साइन एक्स का नहीं डाला, ठीक है। विल सी क्यों नहीं डाला, डालना तो चाहिए था। कॉस एक्स का डाल दिया, साइन एक्स का नहीं डाला, बिकॉज हर एक इसका यहाँ पे अलग लिखना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली नहीं, ऐसा नहीं है। वेट अ सेकेंड, डालना तो चाहिए था फिर। लीजियन कॉस का डाल दिया, साइन का क्यों नहीं डाला। आई एम जस्ट टेस्टिंग दिस आउट, ओके। मुझे नहीं पता उसने क्यों नहीं डाला, एक का डाल दिया, दूसरे का नहीं डाला। आई चेक दिस आउट एंड आई टेल यू सून, ठीक है। मुझे अभी नहीं पता, मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा ज़्यादा, क्योंकि 2 घंटे का लेक्चर है यार। मैं 1 घंटे के लेक्चर में थक जाता हूँ क्लास में, ठीक है। तो इट्स ऑलरेडी 2 आवर्स। तो ऐसा ऐसा कुछ होगा कि यहाँ पे ना कुछ दिक्कत है कि इसने इसका डाल दिया, इसका क्यों नहीं डाला। हाँ, वेट अ सेकेंड, अभी चेक कर लेते हैं। अगर हम इसके अंदर कुछ, ओके सो आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स गाइस। अभी इस पे हम टाइम बर्बाद नहीं करते, ये हम सीखेंगे। एक्चुअली मैं इस पे टाइम बर्बाद ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जब हमारे पास रियल डेटा आएगा ना, तो हम बहुत कुछ करेंगे। ये तो बड़े सिंपल से प्लॉट है, तो हम काफ़ी मैनिपुलेशन करेंगे। ये बेसिकली मैंने आपको इतना सिखा दिया कि प्लॉटिंग कैसे करनी है, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन डालेंगे ना, तो वो बहुत अच्छा बनाएंगे। पता नहीं यार क्यों नहीं मेरा यहाँ पे आ रहा, तो कोई बात नहीं। एक दो और प्लॉट्स होते हैं कि अगर हमने मैट्रिक्स बड़ी करनी है, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज पानी पड़ेंगे, फिर उसके बाद 0,0 भी आता है ऐसा, ठीक है। वो क्या होता है, 0,0 मतलब इस पे वैल्यू पे, फिर जीरो इस पे वैल्यू पे क्या बनाना है, इस पे वैल्यू पे क्या बनाना है, इस वैल्यू पे क्या बनाना है। तो ऐसा ऐसा होता है। वो जितनी बड़ी मैट्रिक्स करोगे ना, जितने बड़े प्लॉट्स होंगे, वैसा हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं जल्दी से, प्लॉटिंग विद आर सी एस वी। तो हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट इम्पोर्ट पांडास एज पी डी करेंगे, क्योंकि हम जो हमने सी एस पी बनाई थी उसको हम करेंगे स्टूडेंट वर्सेज एज प्लॉट करेंगे उसकी, ठीक है। वेरिएशन चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई पाई प्लॉट। ये बस लास्ट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हम एंड कर देंगे, मीटिंग ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तभी मैं सोच रहा था कि मैट प्लॉट लिब का अलग लेक्चर, मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था, बट चलो कोई बात नहीं। हम थोड़ा सा मैट प्लॉट लिब पे वक्त और देंगे, ठीक है। पी डी डॉट रीड सी एस वी, रीड अंडरस्कोर सी एस वी खोलेंगे हम क्लीन वाली, क्लीन डेटा जो हमने निकाला था, ठीक है। डी एफ डॉट हेड एक बार देख लेंगे कि डेटा के अंदर क्या क्या है। ये 4 वैल्यूज हैं हमारे पास, इसको हम सीधा क्या करेंगे। हाँ, एक और फंक्शन होता है लेंथ चेक करने के लिए, लेंथ इज इक्वल टू एल एन डॉट डी एफ। और जब हम लेंथ प्रिंट करेंगे इसके अंदर, तो हमें बता देगा कि टोटल 4 वैल्यूज है उसके अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक डिफाइन करेंगे, नेम इज इक्वल्स टू, कैसे इंडेक्स डिफाइन करेंगे, डी एफ इज इक्वल्स टू डी एफ इंडेक्स को क्या डिफाइन करेंगे, स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट स्पेलिंग स्टूडेंट्स। उसके बाद हम एज डिफाइन करेंगे, एक वेरिएबल जिसको हम डी एफ, जिसकी वैल्यूज होंगी डी एफ, वो सारी वैल्यूज जो एज की वैल्यूज होंगी, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, नॉर्मली पी एल टी डॉट प्लॉट कर देंगे, नेम नेम हम कर देंगे एक्स एक्सिस पे, एज हम कर देंगे ए इस पे, और पी एल टी डॉट शो कर देंगे इसको। अब आपने जैसे अच्छा अच्छा बनाना तो आप बना सकते हो। तो ये आ जाएगा जशन की एज 18,
ठीक है, तो इसकी एज इतनी। हाँ, अब देखो काफी अजीब अजीब सा बन गया काम। तो हम एक लिमिट लगा देते हैं इस पे कि PLT, ओ सॉरी स्पिन, इसको प्लॉट करने से पहले ये जो y की जो लिमिट है ना, PLT डॉट वाई लिमिट, एक फंक्शन होता है वाई लिमिट, वो हमारे पास मैक्स टू मैक्स 0 से लेके 100 तक हो। ठीक है, तो 200 वाली तुम दफा करो उस वैल्यूज को। तो बेसिकली इसने क्या किया, ऐसे बना दिया कि वो 200 से ऊपर में जा रही थी, तो ऐसे बना दिया। अगर हम इसको स्कैटर करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, अगर यहाँ पे हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो पहले तो बनेगा नहीं वो, क्योंकि उसके लिए वो चाहिए होता है। तो हम इसको स्कैटर रखते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया 18 के बाद, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, और एक पॉइंट 100 के बिल्कुल साथ में आ गया। अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं 110, तो वो 2-3 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो हम ऐसे बना सकते हैं। ऐसे हम डेटा को प्लॉट करते हैं, ये हम एक्चुअली करेंगे, ये दिस इज एक्चुअली द मेथड। पहले हम CSV को खोलेंगे, उससे हम अलग अलग मेथड ऐसे ऐसे करेंगे। अब मैं एक चीज बताता हूँ कि हमने कहाँ तक जाना है इन फ्यूचर। ठीक है, that is the end of this tutorial. Hope कि I see after scattered one. Okay, so I explained it. Okay, hopefully explained it right. मतलब अब तक तो सारा समझ आ गया ना। एक बार यस दे दो, फिर मैंने आपको एक चीज दिखानी। सो इन ग्लैमो देयर इज अ पाइथन मॉड्यूल जो सिर्फ प्लॉटिंग के साथ वर्क करता है। तो ऐसा ऐसा कुछ प्लॉट बनाएंगे हम। ठीक है, पहले देखो ये CSV हमने डाली उसके अंदर, और उसने ऐसे ऐसे प्लॉट बना दिया डायरेक्टली। उसके बाद एरर से कैसे डील करना है वगैरह वगैरह, कैसे क्वेरी करनी है, ये भी हम सीखेंगे। ठीक है, मतलब कंप्यूटेशनल फिजिक्स तो है, ये कंप्यूटेशनल एस्ट्रो की तरफ भी जाएंगे हम थोड़ा सा। सो दैट वाज द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल। अगर कोई डाउट्स है जस्ट आस्क मी, आई विल स्टॉप दिस मीटिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सबसे लंबा लेक्चर किया क्या?